In the point processing, we have to apply the techniques directly on the single pixel. Okay, we consider one single pixel, apply the techniques on that, and in the output image the pixel value will be changed. But in the image enhancement second process, it is the neighborhood processing. There are the two main techniques which one we have to consider in the spatial domain. There are the two different domains for spatial domain as well as the frequency domain. Now, in the spatial domain, there are the two different techniques of the image enhancement. One is the point processing, another one is the neighborhood processing. So we have studied the point processing. In the point processing, we can change the pixel value directly. We have to consider only single pixel, okay, and apply the techniques on that. And in the output image, the pixel value has been changed. Now, in the neighborhood processing, we have to apply some different filters on that. Here we have to study the filtering of the image, how we can apply the filters on the image: low pass filter, median filters, high pass filter, like that. So first difference between the point processing and neighborhood processing is, in the point processing we have to consider only single pixel, but in the neighborhood processing we have to consider the neighbors of the one particular pixels. We know what are the neighbors. Okay, there are the total 8 neighbors. Suppose we are considering the n8, so there are the 8 neighbors of the single pixels. So we have to consider the 8 neighbors of the pixel, and the value of the pixel 8 neighbors pixels, it is also affect when we change the center pixel value. So it is called the neighborhood processing. Now here we have to apply the some different filters on that. So yeah. So here I have written the point processing. That is only we have to consider one pixel at a time and modify it directly. In the neighborhood processing, we have to consider the 8 neighbors of that. We know how we can consider the neighbors of that. Suppose this is my center pixel. Okay. So these all are the neighbors of the center pixels. Fine. So change the particular center pixel, and we have to consider the neighbors of that. In the filtering method, we have to consider one mask for that. So using the mask, how we can use the mask? Suppose this is my image. Okay, this is my original image. Now here I am considering the mask 3 by 3. This is the minimum size of the mask. Why? Because we have to consider the mask like that. It has a one center value. अगर मैं 2 by 2 लूंगी तो मुझे कोई सेंटर पिक्सल नहीं मिलेगा. ओके, सो मिनिमम 3 by 3 सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर. तो अगर W5 इट इज माई सेंटर पिक्सल, तो ये सेंटर पिक्सल कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे उसके आजू बाजू में तीन 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 आपके नेबर्स है. ओके, सो टोटल 8 नेबर्स आर दैट. तो आपको ऐसा मास्क कंसिडर करना है कि उसका ऐसा साइज कंसिडर करना है कि वहीं पे आपको एक सेंटर पिक्सल बनना जरूरी है. So minimum size of the mask, it is the 3 by 3. Fine. Now what we have to do? यहाँ पे एक mask ले लिया. Mask को you have to move from left to right. Suppose this is my original image. Okay. तो original image में ये mask मैं 3 by 3 ले यहाँ पे apply करूँगी. Then one column में shift होगी. Then I have to apply 3 by 3. Then again I have to apply 3 by 10. Then again I have to apply the 3 by 3. Similar, you have to move from right to left, and same you have to move from top to bottom. तो ये पूरे इमेज में कैसे अप्लाई होता है हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे. ओके, बट जस्ट अभी बेसिक समझ लो कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मास्क. तो मास्क यू हैव टू अप्लाई ऑन द इमेज. क्या होगा जब मास्क और जब ये इमेज है मेरा, तो ये मास्क में अगर ये इमेज पे जब अप्लाई करती हूँ तो W1 का पोजीशन कहाँ पे आएगा? दिस पोर्शन. ओके, तो दिस पिक्सल वैल्यू एंड दिस मास्क वैल्यू बोथ विल बी मल्टीप्लाई. Same W2 is multiply with this one. Whatever the value is there, whatever the pixel value is there, W3 is multiply with this one. Similar like that. Then we have to take the average of that. ओके, और जो एवरेज वैल्यू आता है वो सेंटर पिक्सल से रिप्लेस हो जाता है. तो दिस इज द वन टेक्निक. ओके, ये लो पास एवरेजिंग फिल्टर मैंने एक्सप्लेन किया. ऐसे बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन द फिल्टर एंड डिपेंडिंग ऑन द मास्क वैल्यू वी हैव टू अप्लाई द मास्क ऑन दैट एंड वी विल गेट सम डिफरेंट वैल्यू एट द सेंटर पिक्सल. तो वो सेंटर वैल्यू को चेंज करता है.
तो यहाँ पे क्या हुआ, नेबरहुड प्रोसेसिंग में ये सारे पिक्सल्स को कंसीडर करना पड़ा हमको। जो पॉइंट प्रोसेसिंग में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये पिक्सल का वैल्यू चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्टली वो पिक्सल को सपोज डिजिटल नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो 255 माइनस दिस वैल्यू, तो सिर्फ यही पिक्सल वैल्यू चेंज होता था। आजू बाजू में पिक्सल का वैल्यू क्या है डजंट अफेक्ट ऑन दैट। बट यहाँ पे नेबरहुड प्रोसेसिंग में क्या है, आपको सारे पिक्सल का वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। वो सारी पिक्सल वैल्यू सेंटर पिक्सल का जब वैल्यू चेंज करेंगे तो उस पर अफेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज द नेबरहुड प्रोसेसिंग। तो ऐसा एक मास्क कंसीडर किया जाता है। मास्क को कैसा कंसीडर करना है कि इसमें कुछ सेंटर पॉइंट बनना चाहिए। तो मिनिमम साइज ऑफ द मास्क वी हैव टू कंसीडर इट इज 3 by 3, तभी आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। और हमेशा नेबरहुड प्रोसेसिंग में सेंटर वैल्यू ही चेंज होता है। सेम अगर मैंने यहाँ पे और एक रो है, तो अगर ये मैं उसको एक शिफ्ट करूंगी लेफ्ट टू राइट, तो फिर मैं यहाँ 1 2 और ये यहाँ पे सपोज लास्ट नेक्स्ट कॉलम है, तो वहीं पे चेंज करूंगी तो ये वैल्यू मेरा चेंज होगा। उसको मैं और शिफ्ट करूंगी तो उसके बाजू वाली वैल्यू चेंज होगा। तो सेम सपोज ये सारे जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स इट इज इंडिकेट माय पिक्सल्स, or this is my 3 by 3 mask. So I have to apply the mask from, I have to move the mask from left to right and top to bottom. Then I can change all the values in my image, all the pixels value in my image. तभी तो इंडिविजुअल पिक्सल आपके सेंटर बनेंगे और सारा पिक्सल वैल्यू हम चेंज कर पाएंगे। तो हमको मास्क को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, fine. Now in the spatial domain filtering का जो इसमें there are two different types of the filter. One is the smoothing spatial filter and another one is the sharpening spatial filter. तो स्मूथनिंग यहाँ पे हाँ, बिफोर दैट लो जब इमेज है तो इमेज इज कंसिस्ट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। Low frequency component means what? Background, it is considered as a low frequency component. Image में जो background information है, it is considered as a low frequency component. And noise and edges are considered as a high frequency component. Remember this point, it is very important. Background, it is considered as a low frequency component, and noise and edges are considered as a high frequency component. When we apply the low pass filter, then it is pass only the low frequency, that means it is pass only the background information, and it is remove the noise as well as the edges of the image. अभी edges क्या होता है? एजिस जब नॉर्मल इमेज कंसीडर करेंगे हम, तो नॉर्मल इमेज में तो आपको एजिस पता चलता है कि जहां पे भी आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है। एक ब्लैक कलर है, सपोज ये मेरा कुछ इमेज है, यहाँ पे ओके, ये पूरा व्हाइट कलर है और ये पूरा ब्लैक कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है, तो व्हाइट से ब्लैक हुआ डायरेक्टली कलर, तो यहाँ पे पूरा एक ट्रांजिशन हुआ कलर का, इट इज कंसिडर एज एज, उसको एज बोला जाता है। तो जब डिजिटल इमेज के फॉर्म में अगर उसको कंसिडर करते हैं इन फॉर्म ऑफ द पिक्सल वैल्यू, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोज 0 0 वैल्यूज है मेरी, ओके, और यहाँ पे 100 100 ऐसा कुछ वैल्यूज हो रहा है, 100 और दिस इज ऑल्सो 100। तो ये जो वैल्यूज है ये जीरो, दैट मीन ब्लैक कलर, ओके, दिस इज माई ब्लैक कलर और दिस इज माई नॉट व्हाइट, ग्रे शेड कुछ, पर डार्क ग्रे शेड है कुछ। तो ये दोनों कलर में जहां पे वो बीच में, तो आपको एक ऐसे लाइन ही दिखने को मिलेगा। तो अगर इमेज के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा ऐसा ट्रांजिशन दिखने को मिलेगा, और डिजिटल वैल्यू पे कंसीडर करेंगे तो ऐसी वैल्यूज होगी कुछ। तो ये मेरा एजिस हो गया। तो ये एजिस को रिमूव करना है, दैट मीन व्हाट? तो यहाँ पे आपकी जो 100 वैल्यूज है ना, ये आपका एजिस है, दैट मीन वहीं पे 100 100 जो वैल्यूज है, वो वैल्यू को रिड्यूस करके इट इज सिमिलर लाइक एज अ जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट या 25 या 30 ऐसा कुछ वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका क्या होगा, वो स्मूथ देखेगा, एकदम हाईली ट्रांजिशन वहीं पे नहीं होगा। 0 to 100 दैट मीन वहीं पे एक पूरा लाइन बनता हुआ देखेगा कि एकदम व्हाइट कलर है, एकदम ब्लैक कलर है, उसमें से वो व्हाइट एकदम व्हाइट शेड में आ रहा है। तो वही दैट इज कॉल्ड द एजेस आल्सो, जहां पे ज्यादा ट्रांजिशन
हो जाता है। ओके, तो वो क्या करता है, लो पास फिल्टर अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे ये जो एजिस होता है, वो एजिस में वो पिक्सल वैल्यू को वो रिड्यूस करके ऐसे लाइक कम उसको रिड्यूस कर देता है, लाइक सिमिलर लाइक एज अ 0 या 10 या 20 ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो वहीं पे आपको वो ट्रांजिशन नहीं दिखेगा कलर का, तो एजिस को वो रिमूव करता है। okay, so this is the considered as a ages. Now noise, yeah, definitely noise है, तो लो फ्रीक्वेंसी लो पास फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो which one is remove the noise in the image. Same when we apply the high pass filter in the image, तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अभी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में क्या होता है, which one is consider very small details about the image, okay, तो उसको वो रिमूव करता है, जो समटाइम्स वो रिक्वायर नहीं होता है एज पर योर एप्लीकेशन। तो हमको अगर बैंडविड्थ कम बैंडविड्थ यूज करना है फॉर अ ट्रांसमिशन, तो वहीं पे वो उसकी साइज कम करने के लिए वी कैन अप्लाई द हाई पास फिल्टर एंड विच वन इज रिमूव द स्मॉल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज, तो उसका साइज कम करता है। तो हाई पास फिल्टर से उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिड्यूस होता है। फाइन, सो दिस इज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द फिल्टर्स। नाउ yeah, so first one is the smoothing spatial filter and second one is the sharpening spatial filter. Now smoothing में वही same, which one is reduce the noise as well as the which one is blur the which one is the blur the edges of that, तो उसको blur कर देता है थोड़ा। एजिस टोटली रिमूव नहीं होता है, उसको उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया है, तो वो जो पोर्शन को रिड्यूस करता है वहीं पे वो थोड़ा आपको आउटपुट में ब्लरिंग दिखता है। ओके, नाउ सेकंड sorry, yeah, the types of the smoothing spatial filter, there are two different types. First one is the min filter and second one is the order statistic filter. It is called the non-linear filter. So we can say it is the linear filter and non-linear filters. Linear filters में क्या आता है, तो it is a mean filter। अभी mean filter में तीन different type of the filters है। First one is the averaging filter। अभी ये mean filter का जो okay, fine, वो बाद में बताती हूँ। हाँ, mean filter, there are three different types of the filter. First one is the averaging filter. It is called the low pass averaging filter. तो मोस्टली एग्जाम्पल उसके बेस पे रहता है, लो पास एवरेजिंग फिल्टर। अप्लाई द लो पास एवरेजिंग फिल्टर ऑन द गिवन इनपुट इमेज एंड फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दैट। ओके, सो लो पास एवरेजिंग फिल्टर क्या करेगा, विच वन इज रिमूव द एजेस एंड नॉइज फ्रॉम द इनपुट इमेज। तो जब भी एजेस को रिमूव करता है तो वो क्या करता है, आउटपुट क्या आता है एवरेजिंग फिल्टर में, यू विल गेट द ब्लर आउटपुट, वो थोड़ा आउटपुट को ब्लर करके देता है। ओके, नाउ अभी फर्स्ट जो एवरेजिंग फिल्टर है उसका जो मास्क है, लो पास एवरेजिंग फिल्टर का, मैम एज और उसका क्या मास्क निकालता है वो? नॉइस रिमूव करेगा। लो पास फिल्टर है ना ये, सो नॉइस इज कंसिडर्ड एज द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। सो लो पास फिल्टर इज ऑलवेज रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो नॉइस रिमूव करेगा और एजिस एजिस को एक्चुअली रिमूव नहीं करता है, वो एजिस का वैल्यू को डाउन कर देता है, तो वो पोर्शन थोड़ा ब्लर हो जाता है। क्लियर? यस मैम। या, और हाँ, अभी जो लो पास एवरेजिंग फिल्टर व्हेन वी अप्लाई ऑन द इमेज, तो डेफिनेटली हमको क्या चाहिए, मास्क चाहिए। तो ये जो एवरेजिंग फिल्टर है उसका मास्क फिक्स है, इट इज द 3x3 मास्क और ऑल वैल्यूज आर सेम, it is 111, all values are 111। ओके, और उसका बोला है एवरेजिंग फिल्टर, तो उसका जो कोएफिशिएंट है इट इज मल्टीप्लाई बाय 1/9। so this is the averaging filter mask, so you have to consider this 3x3 low pass averaging filter mask। तो ये मास्क हम लोग अप्लाई करेंगे इनपुट इमेज पे और आउटपुट इमेज में अपने को एजेस को ब्लर किया हुआ देखने को मिलेगा और आउटपुट कंपेयर विद द इनपुट इमेज आपको ब्लर आउटपुट मिलेगा। फाइन, सो दिस इज द एवरेजिंग फिल्टर। अभी इसमें जो मीन फिल्टर के दो टाइप है, एक फर्स्ट था आपका ये एवरेजिंग फिल्टर, सेकंड इज वेटेड एवरेजिंग फिल्टर। तो उसका जो अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सो इन द फर्स्ट एवरेजिंग फिल्टर में ऑल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। ओके, जो मैंने बताया आपको 1 1 1 1 1 1। नाउ इन दिस वेटेज एवरेजिंग फिल्टर, इसमें कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, उसमें क्या है, सेंटर पिक्सल का वैल्यू हायर है, तो इट इज वेट
It is also 3 by 3 image. Okay. Now here the value is 2. This is also 2, 2, 2. Now these are the 1, 1, 1, 1. And this one, middle one value, it is the it is the 6. So total value it's 6, 7, 8. Oh, just wait. 1 by 80. Sorry, this one is the 4. This one is the 4, not 6. So it's multiplied by 1 upon 16. So this is the ये भी fixed value है 3 by 3 mask value 1 by 16 in 3 by 3 में 1 to 1 2 4 to 1 to 1. तो मिडल जो सेंटर पिक्सल वैल्यू है उसको हाईएस्ट वेट दिया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड द वेटेज एवरेजिंग फिल्टर. और नॉर्मल एवरेजिंग फिल्टर में ऑल वैल्यूज आर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 by 9. ओके. सो दिस टू डिफरेंट मास्क अकॉर्डिंगली आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है अगर आपको वेटेड एवरेजिंग फिल्टर देन यू हैव टू यूज दिस मास्क. And if averaging filter पूछा है normal low pass averaging filter then you have to use this mask. Mostly यही आता है, अभी तक ये कभी भी आया नहीं है. Fine. Yeah. Now this there are the two parts for the main filter. Both are the linear filters. Okay. Now in the non-linear filter it is called the order statistics filter. तो order statistics filter में क्या, अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है. तो ये मेन फिल्टर मिल्क फिल्टर में क्या था कि आपका जो भी मास्क है वो मास्क का वैल्यू मल्टीप्लाई करते थे. पर्टिकुलर हम लोग जब उसको मूव करेंगे इमेज पे तो वो पिक्सल वैल्यू के साथ वो मास्क वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, उसका एवरेज लेंगे और उसको सेंटर पिक्सल के साथ रिप्लेस करेंगे. नाउ ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स में क्या है, उसमें ऐसा कोई एवरेजिंग नहीं करना है, उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसमें रैंकिंग के हिसाब से सेंटर पिक्सल वैल्यू को चेंज करते हैं. हाउ, सपोज ये मेरा जो है कोई इमेज दिया हुआ है. ओके, दिस इज माय इमेज. नाउ दिस वन, तो ये इमेज में जितने भी पिक्सल्स है, यहाँ पे टोटल कितने पिक्सल्स है, 4 6 7 8 9 10 11 12 पिक्सल्स. तो ये 12 पिक्सल्स को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगी और उसके बाद वो 12 में से जो सेंटर पिक्सल बनेगा वो सेंटर वैल्यू को इसके सेंटर पिक्सल के साथ में अरेंज करूंगी. नॉर्मली ऐसा सेंटर बनेगा नहीं, हम लोग 3 by 3 ही कंसीडर करेंगे. इसमें आपको कंसीडर करना है 3 by 3 साइज का ही इमेज और 3 by 3 साइज का इमेज को अरेंज करना है. दैट मीन सपोज माय 3 वैल्यूज आर 0 एंड 6 वैल्यूज आर 100. सो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कंसीडर करती हूँ तो 100 100 100 100 100 100 6 टाइम्स देन 0 0 0. तो टोटल 9 वैल्यूज ऐसे मैंने एक लाइन में लिख दिया. तो सेंटर जो पिक्सल वैल्यू मिलेगा मुझे वो सेंटर वैल्यू को इसका सेंटर से रिप्लेस कर लेंगे हम. तो यहाँ पे कोई एवरेजिंग नहीं करना है, यहाँ पे रैंकिंग के हिसाब से पिक्सल वैल्यू को चेंज किया जाता है. So this is the difference between the mean filter and order statistics filter. यहाँ पे लिखा है this is the ranking result. तो ये रैंकिंग के हिसाब से सेंटर वैल्यू को हम चेंज करते हैं. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट वन, या तो ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स में 3 डिफरेंट टाइप्स है, मिनिमम फिल्टर, मैक्सिमम फिल्टर एंड मीडियन फिल्टर. इसमें मीडियन फिल्टर इज इंपॉर्टेंट. ओके. फर्स्ट में क्या था, एवरेजिंग फिल्टर इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे एग्जांपल रहता है. इसमें मीडियन फिल्टर इंपॉर्टेंट है जिस बेस पे एग्जांपल रहता है. नाउ मिनिमम फिल्टर में क्या होता है, अभी मैंने ऐसे बोला आपको 3 by 3 का कंसीडर करो इमेज और वो इमेज के सारे पिक्सल्स को अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो इन द मिनिमम फिल्टर जो भी सेंटर वैल्यू जो भी सॉरी मिनिमम फिल्टर में क्या करना है, ये टोटल आपके 3 by 3 में जो 9 पिक्सल्स है वो 9 पिक्सल में से किसका मिनिमम वैल्यू जो पिक्सल का है उसको सेंटर वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. तो अगर ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सो सपोज दिस इज माय 3 by 3 इमेज. तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है, 0. ओके, मिनिमम पिक्सल वैल्यू क्या है इसमें, 0. तो ये 0 वैल्यू को जब मैं उसको फिल्टर अप्लाई करके आउटपुट इमेज बनाऊंगी 3 by 3 का, तो ये जो सेंटर वैल्यू है
वो सेंटर वैल्यू 100 को मैं रिप्लेस करूंगी 0 के साथ। अंडरस्टूड? हेलो, Yes, ma'am. आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am, Yes, ma'am. audible. ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ओके फाइन। तो दिस इज द मिनिमम फिल्टर। मैक्सिमम फिल्टर में क्या होता है कि आपको रैंकिंग क्या देना है, मैक्सिमम मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है पिक्सल का, वो पिक्सल वैल्यू को सेंटर पिक्सल से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे 100 ही है, तो 100 से वो 100 रिप्लेस्ड होगा, बट दैट मीन वो सेम वैल्यू रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द मीडियन फिल्टर। मीडियन फिल्टर में क्या करना है, यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो भी सेंटर वैल्यू मिलता है दैट इज फिफ्थ नंबर, टोटल 9 पिक्सल्स है, तो फिफ्थ वन इज योर सेंटर। तो जो भी फिफ्थ में जो भी वैल्यूज आता है, दिस वैल्यू यू हैव टू रिप्लेस विद द सेंटर वैल्यू। सो दिस इज द मीडियन फिल्टर। ओके, तो ऐसे 3 टाइप के डिफरेंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स में क्या थे, एक लीनियर फिल्टर था और एक नॉन लीनियर फिल्टर था। लीनियर फिल्टर का नाम है मीन फिल्टर्स एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर को बोला जाता है नॉन लीनियर फिल्टर्स। मीन फिल्टर में क्या है, 3 टाइप के फिल्टर्स, सॉरी 2 टाइप के फिल्टर्स है, जिसमें मीन फिल्टर्स में हम लोगों को एवरेज वैल्यू कंसीडर करते हैं और उसको सेंटर पिक्सल से रिप्लेस करते हैं। नाउ इसमें एवरेजिंग फिल्टर का मास्क अलग है, वेटेज एवरेजिंग फिल्टर का मास्क अलग है। एवरेजिंग फिल्टर में ऑल कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, इन वेटेड एवरेजिंग फिल्टर सेंटर पिक्सल हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, उसका वेटेज ज्यादा है सेंटर पिक्सल को। ओके, देयर आर द 2 डिफरेंट मास्क फॉर दैट। Now order statistics filter, it is the non-linear filters. There are the, इसमें क्या होता है, एवरेजिंग नहीं करना है, पिक्सल्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, एवरेजिंग नहीं करना है। इसमें हम लोगों को रैंकिंग के हिसाब से अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो भी सेंटर वैल्यू मिलता है उसको ओरिजिनल इमेज के सेंटर पिक्सल के साथ रिप्लेस करते हैं। तो इसमें मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन फिल्टर्स है। मिनिमम में क्या है, जो भी मिनिमम वैल्यू वाला पिक्सल है उसको सेंटर पिक्सल के साथ रिप्लेस करेंगे। मैक्सिमम में जो भी मैक्सिमम वैल्यू वाला पिक्सल है इन 3x3 इमेज, उसको सेंटर पिक्सल के साथ रिप्लेस करेंगे। और मीडियन फिल्टर में you have to arrange all the pixel of 3x3 image in ascending order या descending order, and whatever the value you will get at the center value, you have to replace with the center pixel in 3x3 input image. So this is the median filter. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है अभी? No, ma'am. फाइन। नाउ या अभी फिल्टर सीख लिया। अभी फिल्टर्स में मैंने क्या बोला कि हम लो पास फिल्टर है which one is remove the noise as well as the edges, that mean which pass only the low frequency, and low frequency it is considered as a background information. Now noise remove करना है, it is considered as a high frequency component, so definitely we have to apply the high frequency component over there, which one is remove the sorry, we have to apply the low pass filter over there, which one is remove the noise. Okay, तो noise में ऐसे different type of the noise है यहाँ पे। These are the noise: Gaussian noise, salt and pepper noise, daylight noise, gamma noise, exponential noise, uniform noise। तो ये सारे नॉइज, अभी यूनिफॉर्म फंक्शन, गामा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, गॉसियन फंक्शन वी नो। ओके, तो उसका वही सेम कंसेप्ट है, बट सॉल्ट एंड पेपर इट इज अ डिफरेंट, जो मोस्टली हम लोगों को इमेज में देखने को मिलता है। ओके, तो ये सॉल्ट एंड पेपर नॉइज जब भी इमेज में रहता है, so when we want to remove the salt and pepper noise from the image, so we have to use the median filter। जो अभी हम लोगों ने ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स फिल्टर सीखा ना, नॉन लिनियर फिल्टर्स, इसमें एक मीडियन फिल्टर था, दिस वन। सो मीडियन फिल्टर मोस्टली रिमूव द नॉइज, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज फ्रॉम द इमेज। पहले तो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज होता क्या है, तो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज दैट मीन जब भी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है और इसमें आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं, या तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है जिसमें आपको व्हाइट डॉट्स देखने को मिलता है, तो इट इज कॉल्ड द सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। यू कैन सी हियर, या दिस इज, सो दिस इज माय ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट व्हाइट डॉट्स है, तो ये व्हाइट डॉट्स है, इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉइज। ओके, और ये व्हाइट बैकग्राउंड है जिसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स है, तो इट इज कॉल्ड द नॉइज। तो ये नॉइज को रिमूव करना है तो डेफिनेटली लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे।
तो लो पास फिल्टर यूज करना पड़ेगा। तो लो पास फिल्टर मतलब कौन सा, अपने पास दो है, मेन फिल्टर्स है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर है। तो इसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो मीडियन फिल्टर है वो मोस्टली यूज किया जाता है, तो इससे हमको आउटपुट प्रॉपर मिलता है। क्यों? लो पास फिल्टर का जो मेन फिल्टर है उसमें एवरेजिंग करके वो एजेस को भी ब्लर करता है, तो आउटपुट मोस्टली लो पास एवरेजिंग फिल्टर का ब्लर आउटपुट आता है, तो वो डिसएडवांटेज है उसका। तो वो डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग मोस्टली मीडियम फिल्टर यूज करते हैं, तो नॉइस को भी प्रॉपर रिमूव करता है और आउटपुट को ब्लर नहीं करता है। ओके, सो दिस इज योर सॉल्ट एंड पेपर नॉइस। क्लियर? अभी एग्जांपल्स करें, सिखाऊं फिल्टर अप्लाई कैसे करना है? Yes, ma'am. ओके फाइन, या तो फर्स्ट वन इज द लो पास एवरेजिंग फिल्टर, जिसका मास्क मैंने बता दिया, दिस इज योर मास्क, ऑल कोएफिशिएंट्स वैल्यूज आर 1 1 1, ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाई विद द 1/9। तो सपोज दिस इज माय इनपुट इमेज, नाउ आई वांट टू अप्लाई द लो पास एवरेजिंग फिल्टर ऑन दिस माय इनपुट इमेज। तो अभी मास्क का साइज है 3/3, तो ये मास्क में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, दिस पोर्शन, ओके। फर्स्ट 3/3 इनपुट इमेज को ऊपर मैंने मास्क को अप्लाई किया है। तो जब आप एक इमेजिनेशन करो कि वो मास्क उसके ऊपर रख दिया है, तो सेम पिक्सल का जो पोजीशन होगा, दिस पिक्सल पोजीशन विच वन मल्टीप्लाई विद दिस वन, फर्स्ट वन, ओके। ये पूरे मास्क को मैंने यहाँ पे लगा दिया है दिस पोर्शन पे, तो 10 is multiply with this one, then second 10 is also multiply with the second one, third 10 is also multiply with third one, same second row, 10 multiply 1, 10 multiply 1, 10 multiply 1, and same third row, ओके। ये तीनों को मतलब सेम पिक्सल पोजीशन इनपुट इमेज का और मास्क का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होता है। देन उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये जो टोटल 9 वैल्यूज हुई आपकी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, वो सबका एडिशन करना है। तो 10 10, अभी तो यहाँ पे 10 10 ही वैल्यूज है, तो सबका एडिशन हुआ तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपका, 90, और यहाँ पे 1/9 साथ में है, तो दैट मीन एवरेज करने के सॉरी एडिशन करने के बाद विच वन इज डिवाइड बाय 90, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो जो भी आंसर मिला वो आंसर, दैट इज वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको किससे रिप्लेस करना है, इनपुट इमेज में वो 3/3 इमेज जो कंसीडर किया उसके सेंटर पिक्सल के साथ उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये 10 वैल्यू मैंने एक्चुअली मैंने इमेज लिया है, ये 10 वैल्यू मेरा यहाँ पे रिप्लेस हो गया। सिमिलर अभी मैं क्या करूंगी, वो मास्क यहाँ पे मूव करूंगी, कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो ये अभी मैं ये 3 कंसीडर करूंगी, नेक्स्ट 3 कॉलम्स, ओके। फर्स्ट को मैं रिमूव कर लूंगी, ये मेरा हो गया पोर्शन। नाउ आई हैव टू कंसीडर नेक्स्ट 3, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे जब भाई सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, देन टेक द एवरेज ऑफ दैट, देन डिवाइड बाय 9, और जो भी आंसर मिलेगा उसको ये सेंटर पिक्सल से रिप्लेस करेंगे, देन नेक्स्ट वन। तो ऐसे आपको ये सारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी वैल्यूज आपकी चेंज होते जाएगी, सेंटर वैल्यूज सेम। अभी फर्स्ट रो को छोड़ दो, अभी आपको एक रो नीचे आना है, दैट मीन टॉप टू मूव आपको, टॉप टू बॉटम आपको अभी मूव कराना है। तो अभी यहाँ ये 3 पोर्शन में कंसीडर करूंगी, और यहाँ पे मैं मास्क अप्लाई करूंगी। मास्क अप्लाई करने का मेथड एज इट इज है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द pixel value in the input image with the pixel value of a mask, okay, then take the addition of that, then divide by 9, so whatever the value you will get, you have to replace with the center value, तो ये center value change होगा। तो ऐसे ये पूरी लाइन चेंज होगी, देन नेक्स्ट लाइन चेंज होगी, देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, तो ऐसे पूरे इमेज में हम लोगों को मास्क को मूव करा के सब वैल्यूज को चेंज करना है। अभी यहाँ पे इनपुट इमेज में क्या था, यू कैन सी हियर दिस ऑल वैल्यूज आर 10, दिस ऑल वैल्यूज आर 50, दैट मीन ये जो लाइंस है ना, दिस 10 और 15 के बीच में, दिस इज माय एज, तो ये डिफरेंस ज्यादा है, दैट मीन यहाँ पे कुछ लाइट वाइट ग्रे कलर है और ये डार्क होते जा रहा है, तो वहीं पे वो डिफरेंस ट्रांजिशन दिख रहा है कलर चेंज होने का, तो दैट इज कंसिडर एज अ एज। तो लो पास फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ, दैट मीन मुझे एज रिमूव करना है। एज रिमूव करना है मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो आपका
50 से रिड्यूस होके कुछ और वैल्यू मिलना चाहिए। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो एक इमेज लिख लो, मैं आपको अप्लाई करके भी बता रही हूँ, लिख के। राइट डाउन दिस इमेज 3 3 और 2 8 by 8 का इमेज है। दिस इज 8 by 8 image. First 4 rows are 10 10 10 and next 4 rows are 50 50 50. And write down this mask value. This is used only for the low pass averaging filter. हाँ, ये मास्क उसके लिए स्पेसिफिक फिक्स है और कहीं पे सेम मास्क अप्लाई नहीं कर सकते। मैम आप दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हो? नहीं नहीं, वही सेम सेम सेम। आप क्वेश्चन लिख लिया? नो मैम। हाँ, तो क्वेश्चन लिख लो, मैंने बोल दिया। फर्स्ट 4 रोज 8 by 8 का इमेज है। फर्स्ट 4 रोज ऑल वैल्यूज आर 10, नेक्स्ट 4 रोज ऑल वैल्यूज आर 50। ओके, ये मेरा पूरा इमेज है, मैंने सिर्फ फर्स्ट 3 by 3 वैल्यूज ही लिखा है। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट 3 by मेरा जो मास्क वैल्यू है, वो मास्क वैल्यू को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, वो मास्क मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मेरा मास्क का ऑल वैल्यूज आर 1 1 1। तो मैं जब यहाँ पे ओवरलैप करती हूँ, ये इमेज का साइज मैंने जो मेरा एक्चुअली इमेज का साइज है 8 by 8। ओके, मैं फर्स्ट 3 by 3 पोर्शन कंसीडर करके उस पे मास्क रख दिया। दैट मीन वो पर्टिकुलर पोजीशन अभी जो सेम हुआ, पिक्स इनपुट इमेज का और मास्क का फर्स्ट पिक्सल का, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 10 is multiplied by 1, this 10 is multiplied by 1 and this 10 is multiplied by 1, similar like others। तो all values क्या हो गई, 90 हो गई। पर मास्क में साथ में 1 by 9 भी है, तो 90 by 9। तो मेरा वैल्यू, मुझे आंसर मिला 10। ओके, तो ये जो 10 मिला वैल्यू, वो 10 में कहा, अभी आउटपुट इमेज ऐसे बाजू में आपको बनाना है। ओके, मेक द आउटपुट इमेज एट 8 by 8 का ऐसे ब्लैंक बना के छोड़ दो, उसको बॉक्स बना के। ठीक है, तो अभी ये बॉक्स में दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड वन। मैं अभी यहाँ पे 1 2 और 3, आप पूरा प्रॉपर बनाना 8 by 8 का। तो अभी क्या किया मैंने, जब फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये जो मुझे वैल्यू मिला एवरेजिंग का 10 मिला, तो ये वैल्यू कहाँ किसके साथ रिप्लेस होता है, सेंटर वैल्यू के साथ। ये 3 by 3 इमेज का सेंटर वैल्यू के साथ, सेंटर वैल्यू मतलब दिस वन। तो ये पोजीशन पे मेरा आंसर आया 10। okay, now what I have to do, I have to move my mask from left to right। तो अभी मैं ऐसा ये पोर्शन कंसिडर करूंगी, दिस एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी 10 10 10 ही है। ओके, सेम मास्क अप्लाई किया तो सेम पोजीशन वाले पिक्सल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1, दिस मल्टीप्लाई बाय 1, दिस मल्टीप्लाई बाय 1, सेम लाइक अदर्स। उसका एडिशन किया तो 90 हुआ, और उसको भी 1 by 9 दैट इज डिवाइड किया 9 से, तो आंसर मिला 10। तो ये जो 10 मिला वो किससे रिप्लेस करते हैं, हमेशा सेंटर वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो उससे रिप्लेस किया, दैट मीन ये वैल्यू मेरा चेंज हुआ। यहाँ पे सेम वैल्यू लिया है मैंने, इसलिए एज इट इज वैल्यूज मिल रही है आपको। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, उसको वापस मूव कराना है, 1 पिक्सल पोजीशन मूव करो राइट साइड पे। तो अभी आपको ये 3 कंसीडर करेंगे हम लोग, दिस। तो यहाँ पे भी 10 10 10 है, सेम है। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यूज मिलेगा वो ये पिक्सल चेंज होगा, अभी सेंटर ये है मेरा, तो ये मेरा चेंज हुआ लाइक दिस। ओके, तो ऐसे करके आपको ऐसे चेंज होते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ पे क्या है,
आपकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वहीं पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो बॉर्डर को पहले एज इट इज लिख लो आप, क्योंकि बॉर्डर चेंज होगी नहीं, बॉर्डर कभी सेंटर नहीं बनेगी। बॉर्डर को सेंटर बनाना है तो उसका अलग मेथड है, वो बाद में हम करते हैं, ठीक है। 10 10 10 यहाँ पे जो भी बॉर्डर्स है, बॉर्डर विल बी एज इट इज, बिकॉज बॉर्डर का पिक्सल वैल्यू सेंटर में नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज एज इट इज रहना है, या सॉरी यहाँ पे मैम 50 आ नीचे जाएगा। 50 है ना? हाँ 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 50 है, सॉरी, दिस इज 50 50 50 50, यहाँ पे भी सेम दिस साइड बॉर्डर। तो आपका ये पूरा सेंटर ऐसे चेंज होगा। अभी ये मेरा ये सेकंड रो मैंने लिख दिया, ओके। अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेकंड रो तक मूव करा लूंगी, लास्ट बॉर्डर वो तो छोड़ देंगे, उसको ऐसे भी नहीं होगा। उसके बाद ये मास्क में यहाँ पे मूव कराऊंगी लाइक दिस, एक रो में डाउन आ जाऊंगी, ओके। तो ये यहाँ पर 10 10 10 है। तो अभी ये 3/3 है, सेम वैल्यूज है, सेम मेरा जो भी आंसर मिलेगा एडिशन करके डिवाइड बाय 9 करके 10 आएगा। तो ये 10 मुझे ये पिक्सल से रिप्लेस करना है। बाकी वैल्यूज, बाकी ये सारी वैल्यू एज इट इज रहती है, दिस ऑल वैल्यूज आर एज इट इज, जस्ट ये वैल्यू ही चेंज होता है, ओके। तो अभी यहाँ पे ये 10 हो गया। सिमिलर उसको वापस पूरा मूव कराओ लेफ्ट टू राइट, 1 बाय 1 छोड़ के, कॉलम छोड़ के, तो आपका ये पूरा रोज ऐसे 10 10 10 मिलेगा। क्लियर? समझ में आया कैसे अप्लाई करते हैं? यस मैम। Students? Yes, Okay, ma'am. fine. या तो आपको ये तो सब सेम मिलेगा, आपको मिडल का एक या दो वैल्यूज, रो का वैल्यू कुछ चेंज मिलेगा, वो मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। आपको पूरा कंप्लीट करना है, हाँ? Okay, so here you get the 23.3 in the one row, and the below row you will get the value 36.6. So जो आपका डिफरेंस था इन बिटवीन द 10 to 15, तो जहाँ पे वो ट्रांजिशन दिख रहा था कलर चेंज होने का, इट्स कंसिडर्ड एज द एजिस। तो एजिस को उसने वो रिमूव, वैल्यूज को रिमूव करके 23.3 और 36.6 में किया, तो वहीं पे एजिस रिमूव हुआ है, और उसको शेड्स जो 10 और 10 के अप्रोक्स लाइक 23.3 हो गया 50 की जगह पे, तो वहीं पे अभी अब ज्यादा ट्रांजिशन नहीं, तो एजिस नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो दिस इज द यूज ऑफ द लो पास फिल्टर। मिला सबको ये वैल्यू? यस मैम। ओके, इस दिस ऑल वैल्यूज आर 10 10 है ना, मैंने लिखा नहीं है, डॉट 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 है। You have to complete all you have to complete all the proper digital image, output digital image। तो ऐसे 8x8 का आउटपुट इमेज प्रॉपर बना के दिखो। डन हो गया सबका? डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करें। मैम ये कितने मार्क के लिए आता है? ये सिंगल पोर्शन नहीं आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें लो पास एवरेजिंग, मीडियन फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर तीनों एक साथ अप्लाई करना रहता है। ऐसे इंडिविजुअल पूछा तो मैक्सिमम 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं।
पर अभी तक आया नहीं है, वो तीनों कंबाइन ही आता है क्वेश्चन आता है, वो फिक्स है फिल्टरिंग का एक, वो करते हैं हम बाद में नेक्स्ट में। नेक्स्ट करूं स्टूडेंट्स, हो गया है सबका कि बाकी है किसी का? एम ऑडिबल? यस मैम। रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। ओके फाइन। या नाउ नेक्स्ट वन इज द लो पास मीडियन फिल्टर। अभी मीडियन फिल्टर मैंने बताया, मीडियन फिल्टर दैट इज अ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर, इट इज अ नॉन लीनियर फिल्टर। ओके, अभी नॉन लीनियर फिल्टर में क्या करना है, एवरेजिंग नहीं करना है, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक मास्क नहीं रहता है, बट या वी हैव टू कंसिडर द 3/3 वैल्यूज ओनली। ओके, सो यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है, तो ये मीडियन फिल्टर है। ओके, सो सपोज दिस इज माय मीडियन 3/3, इमेज ही 3/3 दिया हुआ है, मैंने एज ए एग्जांपल समझाने के लिए। तो ये आपको एक इमेज दिया है 1 5 7 2 4 6 एंड 3 2 1 3/3 इमेज। तो यहाँ पे 3/3 है, तो वो एज इट इज कंसिडर करेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल 9 वैल्यूज है, इन 9 वैल्यूज को हम लोग अरेंज कर लेंगे। सपोज असेंडिंग ऑर्डर में चलो करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, देन 1, देन 2, 2, 3, मैं लिखती हूँ यहाँ पे वैल्यूज। First value you have to write down the 1, then 1, then 2, then 2, then 3. उसके बाद क्या था, 3 के बाद 4 5 6 7। ओके, 4 5 6 एंड 7। तो अभी टोटल 9 वैल्यूज को अरेंज कर दिया असेंडिंग में। उसके बाद आपको चेक करना है कि सेंटर वैल्यू कौन सा है, तो दिस इज माय सेंटर वैल्यू, फिफ्थ वन इज ऑलवेज सेंटर वैल्यू इन टोटल 9 वैल्यूज। ओके, सो ये सेंटर मिला, सेंटर वैल्यू क्या है, 3 है। तो जब मैं आउटपुट इमेज बनाऊंगी, आउटपुट इमेज में सेंटर वैल्यू इट इज रिप्लेस्ड बाय द 3। तो जो भी आजू बाजू जो भी वैल्यूज है वो एज इट इज लिखूंगी, बट सेंटर वैल्यू में एक्चुअली मेरा वैल्यू क्या था, इनपुट इमेज में 4 था, तो 4 को मैंने रिप्लेस करके उस पे क्या लिखा, 3 लिखा। तो दिस इज माय आउटपुट इमेज ऑफ मीडियन फिल्टर। तो मैम इसमें बाकी 2 3 हो गए। हाँ 2 3 आएगा फिर। तो ये 1 5 7, यहाँ पे जो भी वैल्यूज था मुझे भी याद नहीं है इनपुट में, तो वो एज इट इज लिखना है, सिर्फ सेंटर वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ ये तो 3/3 इमेज था तो सिंपल था। अभी उसके नीचे जो एग्जांपल है, नाउ दिस इमेज, अभी एक्चुअली मीडियन फिल्टर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज रिमूव करने के लिए यूज होता है। सॉल्ट एंड पेपर नॉइज क्या है, मैंने आपको पता है कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में व्हाइट डॉट है या व्हाइट में ब्लैक डॉट है। ओके, तो वो कैसे, देखो अभी ये जो इमेज है ना, इसमें इतना ज्यादा फर्क, नॉइज ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट मैंने मीडियन फिल्टर कैसे अप्लाई करना है वो टेक्निक के लिए लिया था एग्जाम्पल, बट दिस इज द प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर दैट। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नॉइज नॉइज वाला वैल्यू कौन सा है। ये जो ऑल द वैल्यूज है, अभी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो डेफिनेटली उसका जो ग्रे लेवल का रेंज है दैट इज बिटवीन द 0 to 255। ओके, तो 0 इट इज कंसिडर एज अ ब्लैक एंड 255 इज कंसिडर एज अ व्हाइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जितनी भी वैल्यूज है ना ऑलमोस्ट बिलो 50 है, तो वी कैन से इट इज सिमिलर लाइक एज अ ब्लैक कलर। ओके, और दिस टू वैल्यू 128 एंड 172 वो बहुत ज्यादा वैल्यूज है, तो लाइक एज अ ग्रे शेड, मतलब टूवर्ड्स द व्हाइट कलर जा रहा है। दैट मीन ये इमेज में क्या है, ब्लैक कलर में 2 व्हाइट डॉट्स है, ऐसा बोल सकते हैं हम। समझ में आया कि ये सारी वैल्यूज में 2 व्हाइट डॉट्स दिखने को, मतलब ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में, ब्लैक कलर के इमेज में 2 व्हाइट डॉट है। तो ये मेरा हो गया सॉल्ट एंड पेपर नॉइज। तो ये नॉइज को मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, मीडियन फिल्टर अप्लाई करके उसको निकालूंगी। मतलब आउटपुट इमेज में क्या आएगा, आपका 128 एंड 172 पिक्सल वैल्यू है, वो रिड्यूस होके आपकी बाकी की जो वैल्यूज है उसकी सिमिलर वैल्यू कुछ मिलेगा। दैट मीन वो नॉइस रिमूव हो गया। ओके, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं क्या कौन सा फिल्टर अप्लाई कर रही हूँ, मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, तो अप्रोक्स आइडिया आना चाहिए आपको। तो अभी यहाँ पे मीडियम फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, इट इज नॉट 3/3, उसका साइज है आपका 1 2 3 4 5 3/6 है, 3 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट 3/3 कंसिडर करेंगे, तो दिस इज माय 3/3, फर्स्ट 3 कॉलम्स 18 22 33 अप टू दिस वन। अभी ये 3/3 लेके
मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी ऑल वैल्यूज को। तो वो अरेंज करने के बाद जो आपको मिडल पिक्सल मिलता है वो मिडल पिक्सल को हम लोग 128 से रिप्लेस कर लेंगे। ओके, तो वो आपका लोअर वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेम मेथड वी हैव टू अप्लाई ओवर हियर। यू हैव टू मूव द मास्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ओके, तो अभी यहाँ पे मूव करो एक कॉलम छोड़ के, तो ये 3 कंसीडर करेंगे। ये 3 कंसीडर करने के बाद उसको वापस अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, और जो भी वैल्यू सेंटर वैल्यू है, फिफ्थ वैल्यू है, उसको ये सेंटर वैल्यू से रिप्लेस करो, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट यू हैव टू कंसीडर दिस 3, एक कॉलम और छोड़ के उसमें जो वापस उसको अरेंज करो, जो वैल्यूज आता है उसको रिप्लेस करो 172 से। देन नेक्स्ट लास्ट 3 1 यहाँ पे रिप्लेस करो। तो वही यहाँ पे भी सेम होगा, ये बॉर्डर एज इट इज रहेगा, ये 3 ये वैल्यूज चेंज होगा। इसमें भी 24 एंड 26 ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, मे बी 23 होगा, मे बी 22 होगा इंस्टेड ऑफ द 24 एंड 26, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉइस नहीं है, ऑलरेडी अपना इमेज का मेन इंफॉर्मेशन ही है। अपना नॉइस 128 एंड 172 है, तो वो दोनों में ज्यादा आपको वैल्यूज चेंज होके नियर बाय दिस वैल्यूज आ जाएगा। नाउ अप्लाई एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ मिलियन फिल्टर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे लिखना कैसे है मैं बताती हूँ एक मेथड। इनपुट इमेज लिख दिया। अभी इनपुट इमेज आपका जो भी है, मैं अप्रोक्स वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इमेज नहीं है। तो लाइक दिस आपका ऐसा कुछ इमेज है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे पहले सॉरी ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाना है। हाँ, सॉल्व करे तभी ऐसे ड्रॉ करके दिखाओ कि यहाँ पे मैंने मास्क अप्लाई किया है, ये 3x3 मैंने कंसीडर किया है, और ये 3x3 के बाद इसको अरेंज करो, लाइक अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सपोज मैं अरेंज कर रही हूँ 12 देन 20 देन 28 देन 30 देन 31 32। ये मैं अप्रोक्स लिख रही हूँ, आप कॉपी मत करना, आपका जो इनपुट इमेज है वही करना, लाइक दैट। ओके, उसके बाद उसमें आपको जो फिफ्थ वैल्यू मिलता है, कितना लिखा मैंने, 3 3 6 7 और 8, 39 एंड 41। ओके, तो ये हो गया मेरा सेंटर पिक्सल। तो इसको ऐसे इंडिकेट करो, अंडरलाइन करो या तो सर्कल करो। तो दिस 31 विच वन यू हैव टू राइट डाउन इन द सेंटर पिक्सल। अभी यहाँ पे सपोज सेंटर पिक्सल मेरा था 144। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखो कि 144 you have to replaced with 31। तो वो करके आपको एक आउटपुट इमेज बना के रखो, एक फाइनल आउटपुट इमेज ऐसे बना हो जिसमें आपको 3x8 का इमेज ब्लॉक्स बना के रखो। ये ऐसा ब्लॉक्स बना के रखो 3x8 का। ओके, और इसमें ये जो वैल्यूज चेंज हुआ 144 उसकी जगह पे लिख दो 31। सेम उसको वापस सेकंड ऐसे मूव करो, यहाँ पे इंडिकेट करो कि ये मेरा मास्क है, मैंने ये 3x3 मूव किया है। उसको वापस ऐसे करके इंडिकेट करके उसको अरेंज करो असेंडिंग में। जो भी वैल्यूज आता है उसमें एक लाइन लिखो कि दिस सपोज यहाँ पे वैल्यू है 155, तो 155 इज रिप्लेस्ड विद 40। सपोज 40 आया, ठीक है, जो भी है, और उसको यहाँ पे ऐसे 40 लिखते जाओ। और ये आउटपुट इमेज ऐसे आपको फाइनली लास्ट में बताना है कि ये ऐसा ऐसा चेंज हुआ है। सो दिस इज द मेथड वी हैव टू सॉल्व। एक ही डायरेक्टली मतलब एक इमेज बना लिया फाइनल और रिप्लेस करके वैल्यू लिख लिया, ऐसा मत करो, मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप उसको बताना है आपको, इंडिकेट करना है कि मैंने कौन सा 3x3 कंसीडर किया, उसको अरेंज किया, वैल्यू को रिप्लेस किया और आउटपुट इमेज में उसको लिखा। क्लियर? Yes, ma'am. आंसर बताना हो जाए सॉल्व तो।
128 की जगह पे क्या मिला? उसको किससे रिप्लेस किया? 32 मैम 24। 24 मैम 24। 32 कैसे आया ध्रुमिल तेरा? 1 2 3 24 आएगा। या जब आप ये 3/3 कंसीडर करते हो, 9 वैल्यूज को अगर असेंडिंग में अरेंज किया तो 18, 19, 22, 22, 24, फिफ्थ इज मैम 24। सबका वैल्यू आ गया। हाँ, तो फिफ्थ वैल्यू 24 आएगा, तो 24 से रिप्लेस होगा 128। 31 नेक्स्ट वाला है। Okay. 24 के पहले 31 है, फिर उसके Okay. बाजू वाला भी 31 है, और बाद में लास्ट वाला 28। Okay, let me check in my notes. Yeah, we'll get this output. 24, 31, 31, 26. So you can see in the output, the values are similar like as the other pixel value. So using this medial filter, we can remove the noise from that. Okay, जो 128 and 172 था, white dots थे black color के background में, उसको remove करके हम लोगों का पूरा black information मिल गया, मतलब like as a gray information मिल गया। मैम आई गेस 26 के बदले 28 है। यहाँ पे 28 है। यस मैम। और 25 ना सॉरी 23 then 24 then 25 then 26 नहीं, मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है। yeah मैंने it's 20 24 को 34 लिखा था। हाँ सिंपल है, इसमें बहुत ही सिंपल कोई सॉल्व करना है, सिर्फ ध्यान रखो कि गलत ना लिखो, ताकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में, एनी। बाकी लोगों को मिला है आंसर? Yes, ma'am. फाइन, अंडरस्टूड। दो समझ में आ गए, एवरेजिंग फिल्टर और मीडियन फिल्टर कैसे अप्लाई करना है। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? स्टूडेंट्स ओके फाइन। तो हम लोगों के क्या पहले जो मेन दो पार्ट्स है स्पार्शियल फिल्टर के, इसमें स्मूथनिंग है एंड शार्पनिंग है। तो स्मूथनिंग स्पार्शियल फिल्टर के जो क्लासिफिकेशन थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर, दैट इज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड मीन फिल्टर्स, तो वो हमने सीखे। इसमें एवरेजिंग फिल्टर आया, वो मीन फिल्टर था, लीनियर फिल्टर था, और मीडियन फिल्टर था, वो आपका नॉन लीनियर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर था। ओके, तो ये स्मूथनिंग पोर्शन हो गया। शार्पनिंग में आता है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर इज कंसिडर्ड इन द शार्पनिंग फिल्टर्स। तो भी हाई पास फिल्टर में सेम कंसेप्ट है, मैंने पहले बताया कि हाई पास फिल्टर का यूज क्या है, डेफिनेटली रिमूव द इज पास ओनली द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या पास करेगा? एजिस को पास करेगा, नॉइस और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसको रिमूव कर देगा। ओके, तो इसका अभी जो मास्क है इट इज द डिफरेंट। तो ये हाई पास फिल्टर है, और हाई पास फिल्टर का मास्क ये है आपका, ऑल वैल्यूज आर -1, मिडल वन इज 8। इतना याद रखो, कोई भी मास्क लेते हैं हम, तो मास्क का ओवरऑल वैल्यू 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, नॉट 0। ओवरऑल वैल्यू 1 होना चाहिए। तो दिस ऑल आर द +8 और ए +8। ओके, तो ये 0 या 1 ऐसा कुछ है उसका एक में कंसेप्ट। उसमें हम लोगों ने पहले जो 1 लिया, 1 9/9, इस वैल्यू इज 1। यहाँ
ओके या हाई पास फिल्टर में ऐसा है कि वो 0 होना चाहिए वैल्यूज, क्योंकि ये एज पर योर एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट कभी कभी मास चेंज होता है, अपने सिलेबस में नहीं है, हमको ये फिक्स ही लेना है हाई पास फिल्टर में। बट जब प्रैक्टिकली सोचते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से, मतलब बड़े बड़ी एप्लीकेशंस में जब अप्लाई किया जाता है, तो इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट मास्क वैल्यू वो चेंज करते हैं। तो वो जब फिल्टर का मास्क वैल्यू चेंज करते हैं तो वही कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है कि ओवरऑल वैल्यू जो है वो आपकी 0 होनी चाहिए हाई पास फिल्टर में। तो ये ऑल वैल्यूज आर -8, मिडल वन इज द +8, so it becomes 0. Okay, so आपको as per your syllabus you have to use this filter mask only. So all values are -a1 and middle one value is 8. It is average, वहीं यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, एवरेजिंग करना है, so it's divide by 9, टोटल 9 वैल्यूज है। तो अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट जैसे लो पास एवरेजिंग में किया था, सिर्फ आपको मास्क चेंज हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप फर्स्ट 3/3 कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू सेम पोजीशन वाला मास्क के वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो -10 बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो -10, दिस वन इज ऑल्सो -10, -10 -10 -10, तो हो गया -80 और मिडल वन इज 80। तो उसका एडिशन करेंगे तो आपको उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगा 0, या तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा या तो 0 वैल्यू मिलेगा। अभी हाई पास फिल्टर में जब आप नेगेटिव वैल्यू मिलता है तो नेगेटिव वैल्यू एक्चुअली डिजिटल इमेज में होता ही नहीं, इट इज कंसिडर्ड एज अ 0। तो नेगेटिव वैल्यू को माइनस वाली जो भी वैल्यूज मिली है -10 या -20 या -30, उसको A0 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो वो वैल्यू भी सारी 0 0 0 ही हो जाता है। ओके, तो ये भी कल सॉल्व करते हैं हम लोग, आज टाइम हो गया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, यू कैन लीव, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम।